Hello, Gopal. Thank you for joining me on the IKC Community Show. Thank Good you, to Deep. see you again. Thank you. It's a pleasure of mine, always. One very interesting thing that you had spoken about at India Kitchen Congress last year, Yeah, I remember. and that was design quotient. Yep. Yeah, yeah. So, no doubt it was a very intriguing topic, and you spoke at length over there. I would like to discuss, please tell me a bit more about this. What is design quotient, and why is it becoming so important today? I'll keep this with little introduction of two important terms, which is as a human being, everybody you also know that what is a IQ. IQ is like intelligent quotient, and then there is another level where we measure the things in terms of the emotional quotient. And if you see most of the companies or most of the brand, most of the design team you see across, they do they very hard to work around these two things. Companies try to build themselves around the data they gathered, the information they get from here and there, by their social campaigns, by their different tools, online, offline, and then they try to build all this. With the time they built an intelligent quotient in their whole brand campaign, maybe the brand product, the offering, the final product to the customer. There's a lot of data which is required, and that is what we say. I'll explain what exactly the meaning of the intelligent quotient, and in terms of when you make a design or when you make a brand. Similarly, there's another term which is very popular, and I see from last at least 10 years, there's a lot of brands and companies, they give a lot of focus to do the campaign around the emotions of the customer. They they try to understand their social behavior, they try to understand how they're living, and then those data and those information they stitch together, and they do the campaign, or they develop a brand which is intriguing to the emotions of a human being, and then that encourage them, or attract them to go towards that brand or to that particular solution. So these are very popular. But then there is one more thing which not discussed much, but known very well, and there's a lot of established brands they are practicing, which is a next to that is a design caution. Means design caution is actually not a very we you cannot mark them as a ladder, that first there will be IQ, then EQ, and then DQ. They Okay. are like they are available in all the intelligent, good, and structured brand, and there are teams, there are marketing campaigns go around them, and so the design thinking is basically now we use a design thinking word, doesn't actually it doesn't mean actually the real design where you sit and then you start sketching and do a good design. Mm-hmm. Design thinking you can apply to, you start from your HR. Your HR, while trying to hire the people, they can take care of the overall design philosophy of the company while doing the hiring. So you need to hire right resources. If your company is more focused towards something which has a design focused product or design focused solutions, your hiring need to be a very thoughtful. Your overall product development, and that the process where you do the that should have something in mind, that okay, what exactly the product you are making, which is a design centric. So I'll give you the examples in the latter part of conversation. But there are many brands established around us only. When you see and go around, we feel that we are mostly attracted to the way they are designed, the way Mm-hmm. their functionality, the way, and they may be not, there are very innovative products. So design thinking is basically overall one more dimension to connect to your customer, where you don't need to go with those kind of data centric campaign where lot and lot of people's, you just need to
study their behavior, and then you are making a product according to the consumer's behavior. Here it's a completely reverse process. uh, you design something, or you introduce a product with a very thoughtful study, no doubt about it. You cannot introduce any random product in the market or random solution. But then it's not the way, in a traditional way, that you study the data and then you come up with the solution. It's a completely, maybe sometime it's a completely reverse way, that you design something complete, in a way, and then attract your customers and change their behaviors. Or you try to introduce some new way of life, or new way of adoption, where even they don't know about the product and the solution you are designing and offering. And that can be a very thoughtful design, useful product. People start changing their behavior. And once you slowly think around this, you will find there are many things, there are many products, there are many services around you, which force you to change your day-to-day behaviors. That is basically, I say, that's a design thinking, design quotient of a company. But there's a thoughtful design process is involved, and then the product or offering is being introduced to the customer. So that is what I mean to say, that there's a design quotient is available in every structured or every successful brand. Can you give some examples, cite some examples of such products or services Mhm. which are driven by design thinking? Yeah, so like, आई थिंक इस पॉडकास्ट को और भी बहुत सारे लोग सुनेंगे, तो ये बेटर रहेगा कि मैं पहले थोड़ा सा इसमें आई जस्ट ट्राई टू गिव एन आइडिया दैट व्हाट एग्जैक्टली आई मीन व्हेन आई से दैट आईक्यू बेस्ड प्रोडक्ट क्या होता है, या Hmm, hmm. एक्यू बेस्ड प्रोडक्ट क्या होता है. सो वो एक इजी कनेक्ट रह पाएगा कि हम डिजाइन थिंकिंग या डिजाइन क्वेश्चन की बात क्यों कर रहे हैं. तो Okay. आपको पता है कि एक एवरेज ह्यूमन का आईक्यू जो है वो लगभग 0 से 200 के बीच में मेजर किया जाता है. एवरेज इंडियन स्टैंड समवेयर अराउंड 80 to 90, व्हिच इज अ गुड, That's बेटर the एवरेज. IQ, the intelligent quotient. इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एक एवरेज इंडियन का 80-90 है. और बेस्ट जो है वैसे, बेस्ट का तो कोई, देयर इज नो मेजरमेंट ऑफ बेस्ट, मतलब कहीं कुछ. लेकिन हाँ, ब्राइटर और बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स, या तो हमारे इंडिया में अभी रिसेंटली 2003 की बर्थ की एक गर्ल है, कुमार स्वामी ऐसा, वैशालिनी कुमार स्वामी ऐसा नाम है उसका. उसका Mhm. 225 आईक्यू है. मतलब Wow. 200 इज समवेयर, जो 0 से 200 के बीच में मेजरेबल है. बट उसका वो 225 है. तो हम ऐसे बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट लोगों के बारे में अभी नहीं डिस्कस करें, बट देयर आर एक्सेप्शंस, हमेशा होते हैं. बट एक एवरेज जो है वो 0 से 200 के बीच में. और अगर 80 से अबव, या 90 से 80-90 से अबव है, तो वी कंसिडर देम एज दैट ओके, दिस इज अ गुड आईक्यू. तो आईक्यू, इंडिविजुअल का भी आईक्यू होता है. वैसे जब हम ब्रांड बिल्डिंग या प्रोडक्ट बिल्डिंग का एक जर्नी करते हैं, तब वहाँ भी हम नॉर्मली एक कंज्यूमर आईक्यू का यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं हम? कोई भी ब्रांड इंटेलिजेंट तब बनता है जब वो अ, बहुत सारा कस्टमर का डेटा जो है वो कलेक्ट करता है, Mhm. और उसको इंटरप्रेट करता है फिर, कि कस्टमर का जो डेटा है उसको इंटरप्रेट करके आप प्रोडक्ट बनाते हो. उससे ब्रांड को बहुत मदद मिलती है कि वो कस्टमर के सेगमेंट को समझता है, कि कस्टमर किस तरह के सेगमेंट से आ रहा है, Mhm. कस्टमर का बिहेवियर क्या है, पैटर्न, बाइंग पैटर्न क्या है. अ, तो इस तरह के बहुत एग्जाम्पल हैं जो किसी भी ब्रांड को इंटेलिजेंट बनाते हैं. और Okay. जब इंटेलिजेंटली ब्रांड अपने कंज्यूमर के डेटा को स्टडी करता है, तो उसको उसकी डेमोग्राफिक पता चलती है, उसका एज ग्रुप पता चलता है, उसका पैटर्न पता चलता है कि ये कस्टमर कैसे, किस पैटर्न से बाय कर रहा है. मतलब इज इट अ, लाइक अगर हम एक सिंपल ऑनलाइन ऑर्डर की बात करें, तो कंज्यूमर को पता चलता है कि इसकी रिक्वायरमेंट वीकली है, मंथली है, कैसी है. और उस Mhm. हिसाब से Mhm. आप देखेंगे कि इंटेलिजेंट आजकल एआई को ऐड करके और इतना स्मार्ट कैंपेन रन हो जाता है कि आपकी जिस दिन, या लगभग जिस दिन आपकी जरूरत होगी आपके प्रोडक्ट को, आपको उस दिन ही उससे रिलेटेड कुछ ऑफर्स आ रहे होंगे. Right. ये आप
अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा, और इस तरह से मार्केट में हम ऑनलाइन, ऑफलाइन सब तरह की बात करते हैं। सब तरह की ब्रांड डेवलपमेंट या ब्रांड या प्रोडक्ट डिज़ाइन में सब तरह से इस तरह से आप एक इंटेलिजेंस यूज़ कर सकते हो कि कस्टमर ने पिछली बार आपके ब्रांड को लेकर के अगर कोई फीडबैक दिया तो क्या आप अपना ब्रांड या अपने प्रोडक्ट को कुछ चेंज कर रहे हैं? आपने कुछ पैकेजिंग चेंज कर दी या आपने फेस्टिवल के हिसाब से कोई कलर चेंज कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, आप उसकी लाइफ़स्टाइल की स्टडी कर रहे हैं। आप उसकी प्राइज़िंग परचेज़िंग पावर की कैपेसिटी जो है उसकी आप स्टडी कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आपके एडवर्टाइज़मेंट, आपके कैंपेन, आपके डिस्काउंट, ये सब ये आपके रन होते हैं। तो ये जो स्मार्ट ब्रांड्स होते हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से डेटा ड्रिवन एक्सरसाइज़ के बाद इंटेलिजेंटली मार्केट में प्रेज़ेंट करते हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये ब्रांड की एक आईक्यू है, किसी भी ब्रांड की। हम्म, तो पॉपुलर ब्रांड, तो आप ऐसे कुछ इंटरनेशनली नाम लूँ तो बेटर रहेगा। जैसे आप नाइकी शूज़ हो गया या कोका कोला हो गए, IKEA फर्नीचर हो गए। ये एक ऐसे प्रोडक्ट हैं, आप देखेंगे ये बहुत ही इंटेलिजेंटली मार्केट में अपना कैंपेन रन करते हैं। और अलग-अलग सेगमेंट, अलग-अलग टियर के हिसाब से, अलग-अलग सिटी, अलग-अलग परचेज़िंग पावर, अलग-अलग कंट्री, इस सब के हिसाब से इनके पास कैंपेन अलग-अलग रेडी रहते हैं। हम्म, और ओ ये इंटेलिजेंस से उनको अपने ब्रांड को ग्रो करने में, अपने प्रोडक्ट को अलग-अलग तरह के कस्टमर के बीच में पॉपुलर करने में बहुत सफलता मिलती है। एक छोटा-सा नंबर आपके और जो भी हम हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे उन व्यूअर्स के लिए बताना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि बेवरेजेज़, कोल्ड बेवरेजेज़ में कोका कोला की ऑलमोस्ट 43% मार्केट शेयर है वर्ल्ड वाइड। ओके। ये बहुत बड़ा नंबर है। और इतना ही नहीं, उसके पास 3,500 डिफरेंट बेवरेजेस ब्रांड को उसने टेक ओवर कर रखा है वर्ल्ड वाइड, कोका हम्म, कोला। हम्म, ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर आप रोज कोका कोला के किसी एक ब्रांड के प्रोडक्ट को ट्राई करो तो आपको उसको खत्म करने में 9 साल लगेंगे। ओके। 9 ईयर तक आपको एवरीडे कुछ कोका कोला का एक नया प्रोडक्ट ट्राई करने को मिलेगा। इतना बड़ा पोर्टफोलियो है उसके बाद में। लेकिन उसके बावजूद भी वो हर कंट्री में जाकर के अपने नियरेस्ट प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटिव प्राइस में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देता है। कुछ ऐसे कैंपेन में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है कि पब्लिकली दिमाग, हम बोलते हैं ना जिससे जुबान पे चढ़ जाती है ऐसी बात। तो वैसे उनकी, आपने एक कैंपेन अगर आपको याद हो तो आपको सुना होगा, ठंडा मतलब कोका कोला। राइट। मतलब सिनोनिम बना दिया, मतलब ठंडा मतलब हाँ। कोका कोला। अब ये बहुत ईज़ी लैंग्वेज है, अ, इन्होंने बना दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी बिहेवियर के हिसाब से प्रोडक्ट को ट्वीक करना, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस, ब्रांड इंटेलिजेंस, और उस तरह से उसके हिसाब से प्रोडक्ट को भी ट्वीक करते रहते हैं। मैं केवल कैंपेनिंग की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल प्रोडक्ट आल्सो। तो आपने देखा हाँ, होगा, प्रोडक्ट हैज टू सपोर्ट द कैंपेन। डेफिनेटली अब ब्लैक कोक इंट्रोड्यूस किया उन्होंने किसी एक सेगमेंट में जाने के लिए। इंटेलिजेंटली दे आर मूविंग टू द डिजाइन, यूजिंग द डिजाइन क्वेश्चन और मे बी दैट पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट इज कंप्लीटली नॉट फॉर दोज जो ऐसा कहीं भी टियर 2 टियर 3 सिटी में आदमी उठा के ब्लैक कोक नहीं पी रहा है, बट एक डिफरेंट टाइप की लाइफस्टाइल के लोगों के लिए कॉफी एडेड फ्लेवर का एक कोक बनाया। ओके। ऐसे ही आपने देखा होगा कि डाइट कोक बनाया है, मतलब राइट। डाइट कोक भी कंज्यूमर की, मतलब बेवरेज यूज करना है लेकिन शुगर लेवल को कंट्रोल करना है। आप समझ रहे हैं? तो ये तो कहीं तो फीडबैक मिला होगा ना कहीं कि वो लोग कोक इसलिए नहीं पी रहे हैं कि भाई उनको शुगर से डर है, हम्म, या डेटा कह रहा है कि there's a lot of sugar this, so then they come up with the idea that why don't we use diet coke. So I'm just giving one first one example that how the intelligence, you can bring in anything, a ओके। product or may a campaigning or their एक और अब क्योंकि हमारा, तो ये तो बहुत ही, जो एग्जांपल मैंने दिया है ये बहुत ही एक तरह से हमको बोलना चाहिए कि अ, जिस सेगमेंट का हम डिस्कशन कर रहे हैं उससे थोड़ा कम रिलेट करता है। लेकिन अगर आप इसी तरह से अगर आप देखेंगे, IKEA जैसा कोई फर्नीचर है, तो आपने नाम सुना, IKEA हर कंट्री में जाता है, फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद फिर
they become very popular in that company. So why they are popular? What is their popular reason of being popular? Because IKEA ने एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, जो लगभग वर्ल्ड वाइड सब जगह प्रेजेंट है। वो ये है कि नया कस्टमर अगर आपका कोई फर्नीचर बाय करना चाहता है तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको आती है कि उसका प्राइसिंग और उसका इंस्टॉलेशन, एक प्रॉब्लम आती है। हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फर्नीचर जैसे कि मॉड्यूलर किचन या मॉड्यूलर वार्डरोब ऐसी बात नहीं कर रहे, बट डे टू डे के छोटे-मोटे फर्नीचर में इस प्रॉब्लम को उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली सॉल्व किया। और उन्होंने ही पहली बार फ्लैट पैक को बहुत पॉपुलरली इंट्रोड्यूस किया कि Okay. फर्नीचर फ्लैट पैक भी हो सकता है। आपको इंस्टॉल्ड फर्नीचर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, लोगों को फ्लैट पैक फर्नीचर दीजिए और साथ में एक छोटा गाइड दीजिए, जिस गाइड से उनको लगे कि हाउ टू डू इट योरसेल्फ। आप खुद इसको घर जाकर के, एक स्टूल है तो खुद ही इंस्टॉल कर दीजिए। साथ में Hmm. वो Hmm. कोई सपोर्टिंग छोटे-मोटे नट्स, बोल्ट्स और वो सारे दे देंगे, गाइड दे देंगे, स्टेप बाय स्टेप दे देंगे। इंटेलिजेंटली उन्होंने एक बड़ी प्रॉब्लम, जिससे कि एक फर्नीचर को आम आदमी के घर तक पहुँचाने में दिक्कत होती है, वो है यही डर कि ये इंस्टॉल कैसे होगा? इसको कौन आके इंस्टॉल करेगा? तो ट्रेडिशनली कारपेंटर को बीट करने के लिए इस तरह का फ्लैट पैक और यूज़ किया। ये बहुत इंटेलिजेंट मूव है। इससे उनका एक एयर में, मतलब आप एक किसी फर्नीचर के पीस को जब बना हुआ पैक करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो आप मुफ्त में साथ में एयर का भी पे करते हैं, यानी कि Right. वॉल्यूम। Big volumes. यस, तो उन्होंने वहाँ बचत कर ली। एक ट्रक लोड में जहाँ 5 घर के फर्नीचर जा सकते होंगे, वहाँ 20 घर के फर्नीचर खरीद सकते हैं लोग। इंस्टॉलेशन उन्होंने आसान कर दिया। उससे ओवरऑल प्रोडक्ट की प्राइसिंग में फ़र्क पड़ गया, क्योंकि आपको इंस्टॉलेशन नहीं करना है तो, या सेल्फ करना है तो कस्टमर एक बार उससे डायरेक्ट कोरिलेट नहीं कर पाता कि मैंने कितना खुद का मैन आवर खर्च किया है और कितना Mm-hmm. इंस्टॉलेशन का लगा है। लेकिन अल्टीमेटली वो प्राइस में तो कट हो ही जाता है वो पैसा। तो द पीस ऑफ फर्नीचर लुक लाइक कि ये तो यार चीप है, थोड़ा चीप मतलब सस्ता है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इसको, अफोर्ड। ऐसा ही जब वो करते हैं तो इसकी प्रैक्टिस होने से अगर उनका कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्नीचर पॉपुलर हो जाता है, दैट देन यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्शन। आप वो फर्नीचर को बहुत ज़्यादा बार बनाएँगे, क्योंकि आपका वो फर्नीचर बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि वो बहुत आसान है और क्योंकि आपने उसका इंस्टॉलेशन भी ईज़ी कर लिया है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक सिमिलर टाइप का प्रोडक्शन जब वॉल्यूम में हो जाएगा, तो आपकी प्राइस कंट्रोल हो जाएगी। आप मटेरियल के पीछे बैक एंड में चले जाओगे, वहाँ आप और इनोवेशन कर पाओगे। आप रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिक टाइप का मटेरियल बना पाओगे, और फिर इस तरह से ये पूरा एक साइकिल है, वो बहुत ही इंटेलिजेंटली आपके पूरे प्रोडक्ट को अफोर्डेबल भी बना देगा, येट अगर उसमें डिज़ाइनर एलिमेंट है तो पॉपुलर भी बना देगा। और लाइक it's a very good move to make it the whole product and the journey successful. So Right. this is a known brand marketing product designing strategies, where we say that the product should be intelligent enough to understand the customer behavior, their need, their pricing, their geography, demography, their culture, their practices, everything, and then accordingly. लेकिन उसके बाद ये बहुत ही डेटा ड्रिवन प्रोसेस है। बहुत ही, एक तरह से देखा जाए तो अगर बैकएंड में अगर आप इसको सुपर एरियल व्यू में देखें, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सिस्टमैटिक और ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर एक बार स्टैब्लिश कर दिया तो वन प्रोसेस कैन बी वर्क विथ मल्टीपल प्रोडक्ट, बिकॉज़ Mm. यू नो द आपको उसकी एक तरह से प्लेबुक आ जाएगी, समझ में आ Right. जाएगी कि कैसे करना है। लेकिन उसके बाद थोड़ा-सा कस्टमर को, और अगर आपको एंगेज रखना है, कस्टमर की लॉयल्टी चाहिए, अगर आपको रिपीट ऑर्डर्स चाहिए, अगर आपको, या आपको कस्टमर की एडवोकेसी चाहिए, जहाँ पर आपको लगता है कि कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में जाके बात करे। एक तो क्या होता है, लिया और कंज़्यूम कर लिया, खत्म हो गया, ठीक। लेकिन कोई आपका एडवोकेट नहीं बनता, यानी कि कोई आपके बारे में आपकी बात करना नहीं। तो फिर देन ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स जो डिज़ाइन करने वाले हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल का माइंड पे यूज़ करते हैं, या कनेक्ट वे यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ईक्यू, यानी कि जो इमोशनल क्वेश्चन होता है कि अब आपने प्रोडक्ट के अंदर सब कुछ, उसकी जो हम यूएसपीज़ हैं, उनके अलावा आपने ह्यूमन ब्रेन को या उसके यूज़र को एक डिफरेंट वे में कनेक्ट करने की कोशिश की। वो है कि आपने उसके कहीं उसके इमोशन को इंटरव्यू किया है कुछ। Mm. Mm. तो अगर आप बहुत सारी
आजकल तो बहुत एडवर्टाइजमेंट में ऐसे हमारे इसमें किसी पर्टिकुलर ब्रांड को करूँगा तो वो प्रमोट हो जाएगा, लेकिन अ, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनमें आप देखेंगे ऐसे कैंपेन हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन होते हैं। उसमें कैंपेन को इमोशंस के अराउंड डिज़ाइन किया जाता है, हम्म, और इमोशन जो है वो लोगों को कई बार ऐसे डिसीजन लेने के लिए मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब ऐसा फोर्स कर देते हैं वो कि बार बार वो सेम प्रोडक्ट की तरफ जाता है। जो बच्चों के एक प्रोडक्ट से लेते हैं जिससे कि कोई ज़्यादा वो नहीं हो। आपने देखा होगा बच्चों की कुछ चॉकलेट्स आती है जो किसी एक डिज़ाइनर पैकेट में आती है, फिर उसको खोलते हैं, अंदर से एक तरफ खिलौना निकलता है, एक तरफ चॉकलेट निकलती है। हाँ। बड़ा ही, और फिर वो उसको फिर वो बच्चों के किसी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स या किसी के एनिमेशन से उसको डिज़ाइन कर दिया जाता है। नाउ दिस इज़ समथिंग व्हिच हैज़ अ वेरी आई से इको ड्रिवन प्रोडक्ट डिज़ाइन। इसमें आपने उस बच्चे के इमोशनल क्वोशंट को इमोशंस को कनेक्ट कर लिया आपने, कनेक्ट कर उसकी लिया। बेसिक नीड है, उसकी एक क्यूरियोसिटी है, उसकी एक पर्टिकुलर कलर को लेकर के उसकी एक हमने साइकोलॉजी बनाई है कि लड़कियों का ये कलर होता है। हम नहीं बनाए हैं, सब हमारे हम्म। सराउंडिंग्स में है। मतलब हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो उसके अराउंड हमने उस प्रोडक्ट का, जब मार्केट में हम देखते हैं उसका, कि देन आप जब भी बोलेंगे तो बच्चे के दिमाग में उसकी रिकॉल वैल्यू बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि वो इमोशनली उस प्रोडक्ट से कनेक्ट हो जाता है। मे बी इफ यू सी द पीस ऑफ द टॉय मे बी यूजलेस, उसकी शेल्फ लाइफ 5 मिनट भी होती है, कभी कभी 10 मिनट होती है, कुछ बच्चे 1 घंटा यूज कर लेंगे बट फाइनली फेंक ही देते हैं। बट लेकिन ये तो एक एक एग्जांपल है कि, बट देन दे आर, वो उनके दिमाग में वो प्रोडक्ट हमेशा याद है। अगर आप उन्हें बोलेंगे कि चलो चॉकलेट, तो उनके दिमाग में वो आपको नाम बता देंगे कि ये जो मुझे ये फेवरेट चॉकलेट चाहिए, तो या उनके दिमाग में इस तरह से। और कैंपेन भी होते हैं, आपने देखे, आपको ध्यान है डेयरी मिल्क का कॉम्प्लेट, डेयरी मिल्क एक ऐसा चॉकलेट है जिसका कैंपेन हमेशा ईक्यू से जुड़ा रहता है। उसमें आप हमेशा ही देखेंगे कुछ तो, कुछ भी कैंपेन चल रहा होगा वो हाईली इमोशनली ड्रिवन होगा। या तो कोई इंडिया का कोई फेस्टिवल होगा, वर्ल्ड का कोई हाँ। मैच चल रहा होगा, राइट। कुछ चल रहा होगा कहीं, बट वो दे आर एक्सपर्ट इन बिकॉज प्रोडक्ट लेवल पे इंटेलिजेंट तो उन्होंने पहले ही बना दी, आईक्यू अचीव कर लिया, डेटा अचीव सर कर जो लिया। आप बता रहे हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग डॉल हैज गॉट इंटेलिजेंस कोशंट एंड इमोशनल कोशंट। हाँ, डेफिनेटली। इंटेलिजेंटली बनाई डॉल है, इट्स जस्ट अ डॉल, या एंड उसके अंदर इमोशन भी ऐसे उसको यूज किया है कि नाउ एवरी चाइल्ड वांट्स टू हैव दैट, करेक्ट। तो इक्वेट्स विद ये दैट। यही एक, हाँ, जो है, मतलब कहने का मतलब यही है कि इमोशंस जो हैं वो, एक बार आपने प्रोडक्ट इंटेलिजेंट बना लिया ठीक है, लेकिन कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारी यूजलेस बाइंग है, या बच्चे क्यों बाय कर रहे हैं, या हम क्यों बाय कर रहे हैं, ऐसा मैंने अभी आपने अ, बाकी हम जो बाय करते हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये तो बच्चों का एग्जांपल था। हम भी इस मामले में कुछ पीछे नहीं है, हमारे भी किसी न किसी प्रोडक्ट या ब्रांड को लेकर के इस तरह की एब्सोल्युटली। इमोशनल कनेक्ट हो जाती है। और क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है। अच्छा लगने का क्या डेफिनेशन होती है? अच्छा क्यों लगता है उसका यही डेफिनेशन है कि कहीं न कहीं वो आपके ब्रेन में, आपके माइंड में, आपके इमोशंस को इंट्रिग करता है कि भई नहीं, दिस इज़ गुड। अ, कहीं कोई सोशल मैसेज जा रहा है इसलिए आपको अच्छा लगने लग जाता है। कहीं कोई हो सकता है रिलीजियस, तो ठीक है, कंट्रोवर्शियल है, बट इस तरह कुछ भी हो सकता है जो आपको एक बार ऐसा लगे कि भी हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी से आपको कनेक्ट करने लगे कुछ। हम्म। आपको लगे कि यार ये तो मेरी पर्सनैलिटी से मैच कर, तो आप उससे बाउंड हो जाएँगे फिर, और फिर आप अगली बार जब बाइंग करेंगे, तो मैंने तो कई कस्टमर देखे हैं जो इतनी ब्रांड को लेकर के लॉयल हो जाते हैं इमोशनली कि वो नेक्स्ट टाइम वेट करते हैं कुछ लॉन्च हुआ और फिर ले लेते हैं। ज़्यादा हम्म। प्राइस का डिस्कशन किए बिना ही ले लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये हम बोलते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट को आप डिज़ाइन करते समय या उसकी मार्केटिंग या कैंपेन को डिज़ाइन करते समय अगर आपने इमोशंस को भी अगर एनकेश या ड्राइव करना समझ में आ गया, तो दैट कैन बी अ वन मोर लेवल ऑफ सक्सेस ऑफ योर ओवरऑल प्रोडक्ट ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डेवलपमेंट एंड दिस थिंग्स। पर दुनिया पूरी दुनिया में ये भी डेटा से ही इमोशन को भी ड्रिवन करना पड़ता है। थोड़ा-सा ऑड है, लेकिन अलग-अलग कंट्रीज़ के इमोशन क्वोशिएंट भी अलग-अलग हैं।
मतलब पूरी की पूरी ज्योग्राफी अलग तरह से आई ईक्यू में ड्राइव करती है। और डेटा बताता है कि वर्ल्ड में, हाँ, इंडियंस लोग जो हैं वो अच्छे एवरेज इमोशन से ज़्यादा इमोशन वाले लोग हैं। ओके। लेकिन इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है, सिंगापुर ही है। वो दुनिया का सबसे कम इमोशनल क्वोशंट वाला कंट्री है। उनकी कंट्री में ये इस बात की बड़ी स्टडी होती है और बहुत ही चिंता होती है कि मतलब हम क्या चीज़ में चूक रहे हैं, मतलब व्हाई दे आर नॉट सो इमोशनली कनेक्टेड। उनको समझ में नहीं आता है कि हाउ टू ट्रांसलेट देयर थिंग्स इनटू द इमोशनल वे, और या फिर कोई इमोशनल थिंग है तो वो उनसे अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। तो अब अगर आप सिंगापुरियंस का इमोशनल क्वोशंट देखेंगे तो वर्ल्ड में सबसे कम है। तो हाँ, और फिलिपिनो का देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है दुनिया में। सबसे ज्यादा है। सबसे ज़्यादा फिलिपिनो का है। फिलीपींस के लोगों का इमोशनल क्वोशंट हाईएस्ट है। मतलब अगर आपने वहाँ पर कोई सेंसलेस बात करनी है तो भी कर सकते हैं, अगर वो इमोशनली कही गई है तो दे विल कनेक्ट इट वेरी फास्ट। आई थिंक सिंगापुर में, इटालियंस का भी काफी होगा। हाँ, हाँ, मतलब एवरेज से ऊपर हो सकता है। हाँ। बट जो डेटा स्टैब्लिश डेटा बताता है वो ये बताता है कि फिलिपिनो लोगों का बहुत ज़्यादा ईक्यू है। आप सेम प्रोडक्ट, इसका मतलब ये होगा कि आप सेम प्रोडक्ट जो सिंगापुर में है वो शायद फिलीपीन में नहीं उसी ढंग से बेच पाएंगे, या लोग तो पहुंचे रहेंगे, और शायद फिलीपीन के लोगों के लिए डिज़ाइन की हुई चीज़ों को शायद सिंगापुर के लोग समझ नहीं पाएंगे। उनको थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिएगा उस प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। ओके। तो अ, ये जो इमोशनल बेस प्रोडक्ट का जो जर्नी है, ये क्या करता है, ये एक्चुअली लोगों के अंदर एक पॉजिटिव इमोशंस के फ्लो को बढ़ाता है। कि प्रोडक्ट तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ये शर्ट पहना है या मैंने ये घड़ी पहनी है या मैंने ये फर्नीचर का पीस लिया है, कुछ भी लिया है। प्रोडक्ट तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाते समय आपने उस कस्टमर के या उस सेगमेंट ऑफ कस्टमर को क्या पॉजिटिव इमोशंस कन्वे किए हैं। आप उनकी पिछली किसी अगर वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है या आप अगर उनकी डेमोग्राफी समझते हैं या पर्सनैलिटी समझते हैं, तो आपने उसके अंदर कैसे ट्रस्ट डेवलप करना है, उसके अंदर कैसे लॉयल्टी डेवलप करनी है, उस कस्टमर के अंदर सैटिस्फैक्शन रेशियो को कैसे इंक्रीज करना है। जैसे हम बोलते हैं ना, कस्टमर सी सेट हमारे लिए बहुत पॉपुलर टर्म है कि कस्टमर कितना हैप्पी है आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज को लेकर। तो ये सारी चीजें आपने बेच दिया, प्रोडक्ट खत्म हो गई बात। लेकिन रिपीट ऑर्डर्स के लिए आपको कस्टमर की लॉयल्टी चाहिए। नेट उसके प्रमोटर लिए स्कोर जो हम मेजर करते आपका हैं। प्रमोटर है, आपका कस्टमर जो भी प्रमोटर, उसका आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तब वो आपको प्रमोट भी करेगा और फिर वो आपका रिपीट ऑर्डर भी लेगा। 4 लोगों के बीच में वो आपकी के बारे में पॉजिटिव बात भी करेगा। तो ये इमोशनल क्वोशंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आपका कस्टमर को वापस अट्रैक्ट करने के लिए या रिपीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपके अराउंड एवरीडे में आप देखिए, आप अमेज़न पे कुछ बाय करते हैं कभी? क्यों बाय करते हैं? कन्वीनियंस। क्योंकि कन्वीनियंस है, सही बात है। तो कोई भी चीज़ कन्वीनिएंट होगी तो बाय करेंगे। लेकिन आप फिर से रिपीट ऑर्डर करते हैं। आप देखिए, आपका अगर अमेज़न पे कभी एक छोटा-मोटा अगर कुछ प्रोडक्ट का डिलीवरी या डिले या हो गया, तो आप यू डोंट माइंड समहाउ। मतलब इतना ज़्यादा आप देखेंगे कि उन्होंने सारे प्रोसेस को इतना सीमलेस करके रखा है। वो टाइम पे आपकी विश लिस्ट आपको प्रोड्यूस कर देते हैं, कई तरह के रिकमेंडेशन देते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंटली आपका डेटा कैप्चर किया हुआ है। वो आपको इमोशनली वो आपको ट्विक करते रहते हैं। उनको आपकी बर्थडे ध्यान है, उनको आपकी फेस्टिवल्स ध्यान है, उनको आपकी एज ग्रुप ध्यान है, उनको आपका पिछली बाइंग से आपका पैटर्न ध्यान है, ड्यूरेशन भी ध्यान है, क्वांटिटी भी ध्यान है। उन्हें ये भी पता है कि आपने कोई चीज़ ली है तो कितने टाइम में खत्म होने वाली है एज़ पर कंजप्शन डेटा, तो उतने लगभग उतने टाइम में आपके पास वो वाला रिकॉल फिर से आने लग जाएगा। आपको लगता है कि ये जो फील्स लाइक केयर की जो फीलिंग है ना, कि भाई ब्रांड्स लाइक केयर फॉर अस, दैट एक्चुअली इमोशनली कनेक्ट यू विद देम, बिकॉज़ they are showing that there is an emotional connect between you and brand, but that is so systematically designed कि आपके पास में जो बैठा है वो भी यही फील करता है,
और उसके पास में बैठा है वो भी यही फील करता है, और आप तीनों ही अलग एज ग्रुप के हो सकते हैं, और आप तीनों ही अलग तरह की पर्सनैलिटी हो सकते हैं, इवन आप मतलब अलग कंट्री के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन आपको एक ही फील मिलेगी। ये डेटा और इमोशंस की जो स्टिचिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टारबक्स में जाएंगे आप, कॉफ़ी मिलती है, और क्या है, मतलब ठीक है, मतलब ग्रेडेशन करने हैं और वो सब बात अलग है कि, लेकिन स्टारबक्स में आपने देखा होगा कि एक स्टारबक्स में जाने वाला बोलता है कि नहीं, अभी कॉफ़ी तो मैं यहीं की पीऊँगा, वो कहीं भी होगा तो। एनवायरनमेंट के लिए जा हाँ, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है, जहाँ उसका जो एक वेलकमिंग वार्म्थ उसने उन्होंने जो बनाया है, तो वो जो एक इनोवेटिव वे से उन्होंने क्रिएट किया अंदर बिलोंगिंगनेस, जो हम्म एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, वो एनवायरनमेंट आपको फिर से रिकॉल करता है, आपको बुलाता है। शायद उन्होंने अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग भी इतनी बढ़िया कर रखी है कि आपको लगता है कि नहीं, स्टारबक्स में बैठ के कॉफ़ी पीना इज़ अ गुड थिंग। 2 लोग से हम मीटिंग करेंगे तो स्टारबक्स में करेंगे। उन्होंने एनवायरनमेंट भी दे रखा है, आपको ईज़ीनेस भी दे रखी है। उसके लिए उन्होंने बैक में इनोवेशन भी कर रखा है। आपको सारे मोस्टली स्टारबक्स की जो टेबल है वो राउंड मिलेगी। ओके तब हाँ, तो दे डिज़ाइन्ड इट इन अ वे कि जब आप एक राउंड टेबल पे बैठते हैं, तो आप 2 लोग, तो आप यू फील मोर बिलॉन्गिंगनेस रादर देन व्हेन यू सिट ऑन अ square rectangle table. So like somewhere a very minute psychology play. But these small things, एक aroma जो है अंदर का, they they have the common aroma in all the Starbucks cafe. तो वो आपको फिर से रिकॉल, आपको याद रहता है आपके दिमाग में, आप जब ब्रांड का नाम लोगे तो आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन से तरह स्पेसिफिक तरह की खुशबू को फिर से रिकॉल करेंगे, और फिर आपको वो एनवायरनमेंट याद आएगा कि हाँ, दैट्स अ गुड प्लेस टू सिट एंड टॉक, जाते हैं वहीं जाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट स्टार्ट पेइंग मोर। तो चाहे उबर हो, स्टारबक्स हो, अमेजन हो, ये सारी कंपनियों ने डेटा को नेक्स्ट लेवल पे जब मैच्योर किया और नेक्स्ट लेवल पे उसको जनरेट किया, तो उन्होंने उसके अंदर से इमोशन को भी ऐड करके और हमें हैबिचुअल बना दिया, और हमें यही यही उनकी सक्सेस है। यही अ, आपका जिसे बोलते हैं कि EQ है। मैं डिज़ाइन को लेने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको, पहले मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, बट ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे अराउंड हम इन जनरल बहुत आसानी से देखते हैं। ओके उसके बाद फिर इससे भी आगे का जो लेवल है, वो है अ, आपका डिज़ाइन क्वेश्चन, कि अगर आप इन जनरल अगर ये सब चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझ पाते हैं, तब फिर देन व्हाट नेक्स्ट, इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है? इससे ज़्यादा फिर आपका डिज़ाइन क्वेश्चन जो है वो किसी भी ब्रांड में इन दोनों के साथ में अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी का DQ बहुत हाई है तो उसका IQ और EQ नहीं होगा। IQ EQ होगा, और उसके बाद ही आई थिंक डिज़ाइन क्वेश्चन की भी बारी आती है, या साथ में पैरेलली इट कैन बी ग्रो। देयर कैन बी सम कंपनीज जो दे आर वेरी हाई ऑन द डिज़ाइन क्वेश्चन, बट उनको साइमल्टेनियसली EQ और IQ को भी डेवलप करना पड़ता है, नहीं तो वो इतना अच्छे से कस्टमर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो एक बहुत इनोवेटिव, बहुत अच्छी ब्रांड की कंपनी बन के रह जाएंगे, लेकिन मे बी वो बाद में इतनी सक्सेसफुल नहीं है। तो जो विजुअल और एस्थेटिक एस्पेक्ट होता है किसी ब्रांड का, कि उसको देख करके लोगों को, एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों को लगता है कि यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए ही डिजाइन किया गया है। इमोशनली तो ठीक है, वो तो कैंपेन है, लेकिन प्रोडक्ट को देखने के बाद, या आपको लगता है कि या दिस प्रोडक्ट डिज़ाइन जो इसकी की गई है, या इस प्रोडक्ट की ओवरऑल फीचर्स डिज़ाइन किए गए हैं, इसके इस प्रोडक्ट से लेकर के हमें जो कुछ भी हमारी चाहे वो उसको, आईफ़ोन को पास रखने का आपने प्राइड देखा होगा ना, मतलब लोगों को कि भाई वी कैरी आईफ़ोन। ये राइट ये ये उस आईफ़ोन, उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्वेश्चन है। उस प्रोडक्ट को इस ढंग से डिज़ाइन किया गया है कि उसको जब आप हाथ में रखते हो तो एक लोगो को फ़ील होता है। तो आईफ़ोन ने अपने प्रोडक्ट को बेसिकली डिज़ाइन ही किया है कि ये अपने कंज़्यूमर के बिहेवियर को चेंज करेगा। मतलब फ्रॉम अ प्रोडक्ट डिज़ाइन इटसेल्फ इज़ प्रोडक्ट इज़ मेड टू चेंज द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द कंज़्यूमर। उससे पहले आप आईफ़ोन यूज़ करेंगे, और अगर आपने पहले कोई डिफरेंट डिवाइस यूज़ कर रखा है ब्रांड का, तो आपको अपनी सर्फिंग हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। आप बैक कैसे जाते हैं, आप किसी भी आइकॉन को कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आपको देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस। इवन उनके दोनों का आप देखेंगे दोनों का आईओ जो एनवायरनमेंट है वर्किंग, वो भी फ्रेमवर्क भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो
not only in terms of the physical design और जो उसका प्रोडक्ट का जो शेप स्ट्रक्चर बॉडी या उसका मेटल है, बल्कि वो उसकी बैक में जाकर के उसका जो उसका फर्मवेयर है से लेकर के उसका सॉफ्टवेयर सब कुछ उन्होंने इस तरह से रिडिजाइन किया है कि वो कंज्यूमर की हैबिट को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं और अगर कंप्लीट आप लैपटॉप कंज्यूमर देखें तो उसका कीबोर्ड ही डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट कीबोर्ड है। लेकिन आप देखिए ये ब्रांड के डेवलपमेंट और ब्रांड के ओवरऑल जर्नी में ये एक एक तरह का एक बड़ी हिम्मत चाहिए, मतलब बहुत ही थॉटफुल प्रोसेस है ये कि कस्टमर जैसा चाहता है वैसा बनाने की बजाय प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे और फिर कस्टमर को उसके हिसाब से डालेंगे। व्हाई वुड दे डू तो दिस? कस्टमर की हम्म ऐसा करने की जरूरत क्या है? ये जो उस प्रोडक्ट के पीछे जो भी इनोवेशन करने वाला जो मेन मेन पर्सन है, उसने ऐसा सोच के प्रोडक्ट को डिजाइन किया है कि भाई मैं प्रोडक्ट में कुछ ऐसे फीचर्स या कुछ ऐसी चीजें करूं, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग सब सब चीजों का फर्स्ट टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि उसने पहली बार ऐसा कुछ किया कि सबके हैबिट चेंज कर रहा है। मतलब जब पहली बार मोबाइल फ़ोन को बनाया गया था, तब उससे पहले मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ हुआ करते थे। तो हमें ऐसे एक हाथ में ऐसे पकड़ के चौगा और डायल करने की आदत थी। तो ऑब्वियसली अ, हम जब मोबाइल फ़ोन पर मूव हुए तो हमने वहाँ अपनी हैबिट चेंज की। लेकिन फिर देन इनोवेशन करने वाले जो भी है उन्होंने ये सोचा कि ये भी तो एक हैबिट चेंज हुई है, हम दूसरी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। बजाय कि वो उन्होंने एग्जिस्टिंग हैबिट्स जो है कस्टमर की उनको एनकैश करते हुए प्रोग्रेशन करने की बजाय दे टेक अ डिफरेंट रूट ऑफ कंप्लीट डिफरेंट। एंड वो उनका एक तरह से आपको देखेंगे तो वो उनका डिजाइन यूएसपी बन गया। मतलब एक 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 उन्होंने अपने आप को प्रोडक्ट को कंप्लीटली कंपेरेबल ही नहीं रखा कि आप कंपेयर ही नहीं कर सकते उस प्रोडक्ट को। एंड दैट्स द डिफरेंशिएटर। वही बोल रहे हैं कि भाई आप किससे कंपेयर करोगे इस प्रोडक्ट को, अभी ये तो प्रोडक्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है। बिहेवियर राइट। डिफरेंट करता है इसका, इसका हार्डवेयर डिफरेंट है, इसका सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, इसका काम करने का तरीका डिफरेंट है, इसका स्टोर करने का तरीका डिफरेंट है। अ, अ, मतलब तो ये एक जो इस तरह की विजनरी थॉट है वो डिज़ाइन को लेकर के और प्रोडक्ट के ओवरऑल डेवलपमेंट की जो डिज़ाइन जर्नी है उसको लेकर के, दैट्स दैट्स चेंज द एंटायर एंटायर जनरेशन में पूरा आप देखेंगे जो मोबाइल यूजर है वो कम्प्लीटली दो भागों में बट गए एक तरह से। तो इसमें प्राइस आईओएस का तो डिस्कशन ही खत्म हो जाता है। खत्म हो गया, उन्होंने प्राइस को डिस्कशन खत्म कर दिया कम्प्लीटली। अब आप देखिए आज भी नया वर्जन लॉन्च होता है तो बाहर लाइनें लग जाती हैं स्टोर के बाहर पे, पीपल आर वेटिंग और देयर इज नो डिस्कशन अबाउट प्राइसिंग। सो यहाँ पर आते आते एक अ, एक एक प्रोडक्ट की रेगुलर जर्नी में आपके डेटा को स्टडी करना, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड करना, लोगों को ईज़ प्रोवाइड करना, फिर उसमें थोड़ी-सी इमोशनल अटैच करना, फिर उनकी हैबिट्स जनरेट करना और फिर बाद में एक तरह से कंप्लीटली डिफरेंट थॉट है जिसमें कस्टमर को कुछ अलग ही तरह का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, कुछ अलग ही तरह के प्रोडक्ट में इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करना जिससे कस्टमर कंप्लीटली आपकी साइड हो जाए और उसके पास फिर देन ये उसका हैबिट भी हो जाए और उसकी उस डिज़ाइन को लेकर के लाइकिंग भी इतनी हो जाए या उस प्रोडक्ट को लेकर के इतना वो अ, उसमें लॉयल्टी भी आ गई, उसमें जो यूज़र हैं वो लॉयल भी होते हैं, वो वापस रिपीट वैल्यू भी होती है, रिकॉल भी होता है, प्राइड भी होता है उनका उसको ओन करने के लिए दे शो ऑफ भी करते हैं उस प्रोडक्ट को दिखाते भी हम्म। हैं, सब कुछ करते हैं। एंड दैट इज़ वेयर द होल द डिज़ाइन क्वेश्चन कम इनटू द पिक्चर। तो आप देखेंगे अच्छे ड्रेस डिज़ाइनर हो गए, ड्रेस ड्रेस डिज़ाइनर क्या करेंगे? ड्रेस डिज़ाइन में यही होता है कंप्लीटली, जो फैशन वर्ल्ड में ऐसा ही होता है कि कस्टमर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर तरह की डिज़ाइन से बाउंड हो जाते हैं या उस डिज़ाइनर्स के कलेक्शन को लेकर के बाउंड हो जाते हैं और फिर वो उस पर्टिकुलर डिज़ाइन से ही अपने पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं या उनको लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी को सोसाइटी में दिखाने के लिए जब तक वो ये ब्रांड को वेयर नहीं करेंगे तब तक वो जस्टिस नहीं करेंगे। जो भी और वो ये बनाए, जो डिज़ाइन फिर वो जो भी बनाएँगे, फिर जैसा कभी-कभी अभी लगता अ, हो उल्टा सीधा। चलता है, चलता है। लेकिन ये जो डिज़ाइन की को लेकर के ये जो है, ये सक्सेस की आपको प्रीमियम भी प्रोवाइड कर देती है कई बार।
आपको आपको एक नया कस्टमर, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको एक नया कस्टमर सेगमेंट मिल जाता है, जो हो सकता है आज तक आपके पास नहीं आया हो। वो आपके पास आना चालू हो जाता है, क्योंकि उसको आपकी डिज़ाइन्स को लेकर के, आपको प्रोडक्ट को लेकर के अगर उसकी उसको आपके प्रति यू नो ये लाइकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो यू सडनली यू मे हैव क्रैक अ कंप्लीट न्यू सेगमेंट ऑफ द मार्केट, एंड देयर you got a lot of success when you implement the design caution into overall your product development. तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि हम्म, आप ऐसी ऐसी कोई आप ऐसा कोई स्टोर आपको याद है, ऐसा कहीं रिटेल में आप जाते हैं जहाँ पर अगर आपको आँख में पट्टी बाँध करके फिर वहाँ पर जाकर के और खोल दिया जाए, तो आप तुरंत बिना किसी ब्रांड को देख करके, बोर्ड को देख के पहचान जाए, अरे ये तो इसका स्टोर है। ये जो ओवरऑल अब इसको रिटेल स्टोर डिज़ाइन कहो या उस प्रोडक्ट की ओवरऑल प्लेसमेंट कहो या उसकी कुछ भी, उसमें पैलेट हो सकती है, कलर पैलेट हो सकती है, उसका सिलेक्शन हो सकता है, क्यूरेशन हो सकता है उसका, उस प्रोडक्ट की जो ब्रांड जो प्रोडक्ट पढ़े हैं उनकी डिज़ाइन ऐसी हो सकती है, सब कुछ मिला करके इट्स ओवरऑल वर्किंग ऑल टुगेदर, वर्किंग वर्किंग डिज़ाइन उसकी सारे एलिमेंट्स पे ही काम करता है। आप पहचान जाएंगे। मैं आपको एक छोटा-सा पॉपुलर होम डेकोर, छोटा तो नहीं है, मतलब एक पॉपुलर होम डेकोर ब्रांड की बात है। प्योर का एक स्टोर है, आपने राइट। सुना होगा। यस, तो उस यू आर स्टोर राइट। में आप जाएँगे तो घुसते ही अलग आपको कुछ नहीं करते वो, हाँ, अलग कुछ नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपना एक डिज़ाइन स्टाइल बना रखा है कि राइट। वो हमेशा ही प्रोडक्ट को कलर सेगमेंट में जमा के रखेंगे। हाँ, ग्रीन्स हैं, उनके पर्पल्स हैं, गोल्ड आपको गोल्ड डेकोर है स्टोर उनके। में, हाँ, आपको डेकोर स्टोर में प्लेटें, ग्लास, मे बी कैंडल स्टैंड, मे बी समथिंग, वो सारे अलग-अलग शेल्फ में मिलेंगे आपको, लेकिन प्योर के स्टोर में वो सारे एक जगह, एक कलर वाले एक जगह और दूसरे कलर वाले दूसरी जगह, तीसरी जगह। आप स्टोर में घुसेंगे, आपको कोई भी साइन बोर्ड देखने की जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा आप किस डेकोर ब्रांड के स्टोर में खड़े हैं। ये उनका, मैं बोलूँगा कि ये उनके स्टोर का डिज़ाइन क्वेश्चन जो है वो आपको तुरंत रिकॉल कर देता है कि मैं इस स्टोर में हूँ। और ये अ, आप अगर आपने एक पॉपुलर फैशन एक्सेसरी प्रोडक्ट ब्रांड सभी जानते हैं, लुई विटॉन नाम सबको ध्यान होगा, एलवी का स्टोर होता है। स्टोर की, एलवी के स्टोर की डिज़ाइन ही एलवी की सबसे ज़्यादा, एक तरह से देखा है तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो करते हैं स्टोर की डिज़ाइन। हम्म। एलवी एक ऐसा ब्रांड है जिसकी विंडो को डिज़ाइन करने में वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपका प्रोडक्ट मे बी अ स्मॉल, मे बी जस्ट clutch or maybe handbag, but the window size can be a 10 by 10 feet or 12 by 12. Sometimes it's when you see the stores in Europe or some big airports, the whole facade is made just for one product. राइट। They are famous for uh, registering their design in the mind of the consumer. उनकी अपनी एक डिज़ाइन लैंग्वेज है जिसको लोग कैरी करना पसंद करते हैं। उनको फंक्शनलिटी और ये सबसे इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या फंक्शनलिटी है उसका, बट उसका प्रोडक्ट का डिज़ाइन आपने अगर आप उस ब्रांड को अगर थोड़ा-सा कहीं स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे अभी याई याओई कुसामा करके एक जापानीज़ पोल्का डॉट आर्टिस्ट है, जो पोल्का डॉट्स पर डिफरेंट डिज़ाइन करती है। इस 23 में, ईयर 23 में एलवी ने उसको केवल और केवल अपने बैग्स की डिज़ाइन करने के लिए हायर किया, और पूरी की पूरी सीरीज केवल और केवल पोल्का डॉट्स के ऊपर, डॉट्स के डिज़ाइन के ऊपर उन्होंने हम्म। लॉन्च की। और चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे बड़े स्टोर हो, चाहे उनकी विंडोज हो, प्रोडक्ट जहाँ इंस्टॉल किया उन्होंने, एक वो डिज़ाइन लैंग्वेज। अब जो एलवी के फॉलोअर्स हैं उनको अगर पोल्का डॉट नहीं भी पसंद आ रही होगी तो भी उनको उस ब्रांड की वजह से वो पसंद आनी चालू हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने उसको इस ढंग से रिप्रेजेंट किया, उसको इस ढंग से उन्होंने ब्रांड किया है, इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ उसको एसोसिएट किया है उसको, कि आपको उस प्रोडक्ट को अपने आप में पहले तो ब्रांड को कैरी करने का प्राइड रहेगा, फिर आपको उसका डिजाइन कैरी करने का प्राइड रहेगा, एंड देन लाइक ऑल थिंग्स दे स्टिच सो नाइसली टुगेदर कि you start using that particular design which may you even don't know कि पोल्का डॉट नाम की कोई चीज या कोई डिजाइन होती भी है पहले, या बस आप तो राइट। उस ब्रांड को लेकर या उसकी डिजाइन को लेकर के आप इतने डिवोटेड हैं कि सो
डिज़ाइन का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से उसके टारगेट ऑडियंस को सीधा उनकी दिमाग को और उनकी लाइकिंग्स को हिट करता है। इटालियन ब्रांड्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इसमें बिकॉज़ वो डिज़ाइन सेंट्रिक फोकस ज़्यादा होते हैं। जर्मन ब्रांड्स देखेंगे तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन दुनिया इसी तरह से बटी हुई है। आधे लोग डेटा पर काम करते हैं, आधे लोग के हिसाब से इन होते हैं, आधे लोग इमोशंस के हिसाब से इंट्रिग होते हैं। तो आईक्यू, ईक्यू के अलावा ये जो पूरा सेगमेंट है जो आधी दुनिया को इम्प्रेस कर सकता है, वो मैं इसके बारे में बात करना चाहता था कि आप देखेंगे कोई भी अच्छे, बड़े, सक्सेसफुल मैं बड़े होने की बात नहीं है, हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट से ही किसी ब्रांड ने अपनी फिलॉसफी ही डिज़ाइन की तरफ रखी है, तो रख सकता है और वो वहीं से स्टार्ट कर सकता है। आई मीन टू से दैट प्रोडक्ट, ब्रांड और इस तरह की चीज़ों को डेवलप करने में डिज़ाइन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और वो इस तरह से लोगों को और कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकता है कि वो आपका मिड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट या मे बी मैच्योरिटी पॉइंट पे कहीं भी आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा सेट ऑफ कस्टमर को टारगेट करना है तो। सो दैट वाज आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन वेयर द डिजाइन क्वेश्चन प्ले a role. You spoke about maturity. I mean, हम्म, and also in your presentation, you also spoke about the levels of maturity. हम्म. तो एक बारी फिर से उसको बताइए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका लेवल ऑफ मेच्योरिटी क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स टुवर्ड्स मेच्योरिटी ऑफ डिजाइन। हाँ, तो ये मैच्योरिटी फ्रेमवर्क सुनने में ऐसा लगता है कि लाइक जैसे पहले ये होगा और फिर ये होगा और वो होगा, ऐसा नहीं है। मतलब एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ डिज़ाइन सॉरी डिज़ाइन अप्रोच, यानी डिज़ाइन क्वेश्चन के अप्रोच को अडॉप्ट करने की मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट हो सकती है या उसका एक फ्रेमवर्क है। अगर किसी ब्रांड ने सोच ही लिया है कि नहीं उसको हमेशा ही डेटा सेंट्रिक, लो डिज़ाइन, ईज़ी टू यूज़ और इस तरह के प्रोडक्ट में ही रहना है, तो हो सकता है वो अपने पैकेजिंग के ऊपर अपना लोगो का भी ना लगाएँ। फिर भी वो इतने ज़्यादा नंबर में बेचे कि अ, आप वो सक्सेसफुल हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। और हो सकता है कि कोई ब्रांड ने शुरू से अपनी फ़िलॉसफ़ी रखी है, तो वो उसकी पैकेजिंग में भी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे कि लोग उसके डिब्बे को भी सँभाल के रखेंगे, ना कि प्रोडक्ट को। और तो मतलब जब हम ऐसे बोलते हैं कि मैच्योरिटी, इट डज़न्ट रियली मीन कि जो केवल डेटा अप्रोच या लो डिज़ाइन अप्रोच पे, प्रोडक्ट केवल अप्रोच पे काम कर रहे हैं, दे आर नॉट गुड और सक्सेसफुल, बट उनकी अप्रोच क्या है, वो डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि किसी की जर्नी स्टार्ट वहाँ से हो कि जहाँ वो पहले नंबर्स ले और फिर उसको लगे कि अब एक डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर की तरफ जाना है, तो वो उसमें धीरे-धीरे प्रोडक्ट के अंदर डिज़ाइन अप्रोच को इन्वॉल्व करे। रिवर्स में भी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो पहले डिज़ाइन अप्रोच को फॉलो करे और एक ऐसा प्रोडक्ट प्रेज़ेंट करे कि लोग फिर उसको नए सिरे से पसंद करना स्टार्ट करें या उसके प्रति क्रेज़ी हो जाएँ या उस वो उनकी लाइकिंग हो जाए। लेकिन इन जनरल आप देखेंगे कि जहाँ वॉल्यूम, वैरायटी और वैल्यू की फाइट रहती है हमेशा, वहाँ पर अ, ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत जो है वो डिज़ाइन से की जाए। सॉल्यूशन से भी की जा सकती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर्स पे चल रही हैं चीज़ें या अ, जैसे कंज्यूमेबल आइटम है ये वो। तो शुरुआती लेवल पे अगर आपके पास आपका बहुत कोई कॉम्पिटिशन नहीं है या कुछ अर्ली बर्ड एंट्री है, तो मे बी यू कैन गो विद द लो डिज़ाइन। And low design doesn't really mean that product is not useful or product is not attractive, but they don't keep innovating things. They don't they don't focus that part of the brain which attract by the design and then take the decision. That I mean to say, that is what design approach. तो थोड़ा सा कभी समझने में कम्युनिकेशन में गलत ना हो जाए कि डिज़ाइन अच्छा होने का मतलब प्रोडक्ट अच्छा होगा ये ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। ये अप्रोच की बात है कि आप प्रोडक्ट की ओवरऑल डेवलपमेंट में किस अप्रोच को पहले लेते हैं। तो एक है जहाँ पर एक अप्रोच है जहाँ पर आपका वॉल्यूम, आपकी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और उसकी वैल्यू और ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दैट इज़ वन लेवल जहाँ पर आपका प्रोडक्ट स्टे कर सकता है या उसकी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। और फिर देयर कैन बी अ प्लेस वेयर योर aesthetics, your process innovations and all these things which start making a sense, lot of sense. तो वहाँ पर आकर के या तो आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी लेवल पे ही वैसा हो या फिर
आपने टाइम के साथ अंडरस्टैंडिंग करते हुए वो मैच्योरिटी डेवलप की। तो स्टारबक्स ने शुरू से ही अपनी ये इनोवेशन नहीं ऐड किया था, या जिसमें कि लाइक कि दे कीप देयर टेबल्स इन अ पर्टिकुलर शेप और दिस। ये टाइम के साथ उनकी लर्निंग है कि टाइम के साथ अगर किस तरह से अगर वो इस तरह का एनवायरनमेंट में एडिशन करेंगे, they change something more user friendly, or they make it more belonging to the customer। ये एक जर्नी है जो एडप्ट की जा सकती है टाइम के साथ। तो ऑब्वियसली दिस इज मोर डिजाइन एंड एस्थेटिक प्रोसेस को ऐड करना टाइम के साथ, जब आपको लगता है कि नहीं यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट विच नीड समथिंग मोर, or that can be your entry point always। Similarly, design as a culture of overall organization can also be very starting point। जो हम आईफोन का एग्जांपल लेते हैं वो यही है। वहां पर उन्होंने प्रोडक्ट को तब तक नहीं लॉन्च किया था जब तक उनको नहीं लगा कि ये कुछ हमने अलग बना लिया है। तो ये एक अलग फ्रेमवर्क में एक अलग लेवल है जहाँ पर उन्होंने डिजाइन सेंट्रिक अप्रोच को सबसे प्राइमरी पोजीशनिंग दी, और फिर उन्होंने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, उसकी प्राइसिंग वाइजिंग और वो सब के लिए भले ही वो कई सारी बैंक्स और कार्ड्स के साथ टाई अप्स करते हैं और डिस्काउंट करते हैं, वो सब करते हैं। दे आर यू नो ये उनके बाद के अरेंजमेंट है। लेकिन एज ए कंपनी ओवरऑल आप देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी, टेस्ला की एग्जांपल लीजिए। टेस्ला का कार जो है वो बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक कार है। आप उसकी सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो ही आपको एक विजुअलाइज हो जाएगा कि टेस्ला की कार कैसे होगी। तो उस कंपनी में काम करने वाला हर एम्प्लॉय वैसा सोचता होगा, तब वैसी कार बनेगी। Right. उसको वही ट्रेनिंग दी जाएगी, सो चाहे वो उसकी और उसकी डिज़ाइन टीम कोई अलग से नहीं होगी। मतलब होंगे तो वही लोग जो ओवरऑल दुनिया में प्रोडक्ट और डिज़ाइन के बारे में काम कर रहे होंगे। मे बी ऐसा नहीं कि टेस्ला की कार बनाने के लिए अलग तरह की ट्रेनिंग कार बनाने की भी होगी। ऑब्वियसली प्रोडक्ट है तो इंजीनियरिंग अलग हुई होगी, नो डाउट अबाउट इट। बट ओवरऑल डिज़ाइन थिंकिंग तो वही चल रही है। डिज़ाइन तो कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ नहीं, उनको आप कैसे प्लेस करते हैं, कैसे, तो वो डिज़ाइन क्लासिक बन जाती है। वही डिज़ाइन को अलग ढंग से प्रेज़ेंट करते हैं तो मॉडर्न बन जाती है, फ्यूचरिस्टिक बन जाती है। तो लेकिन एट द मे बी एट द लीडरशिप लेवल और एट द इनिशियल थॉट लेवल पे, जो टेस्ला को डिजाइन करने वाला होगा उसको सारा इनपुट ही वैसा दिया गया होगा कि प्रोडक्ट जो है या आईफोन है उसको डिजाइन करने वाले को इनपुट ही ऐसा दिया गया कि हमें पहले इस लैंग्वेज में रहना है, या हमें इस तरह की ओवरऑल एक एक डिजाइन की लैंग्वेज है, एक पैलेट है, एक पैटर्न है, एक कलर है, एक सब मे बी मटेरियल और सब लेवल पे वो इतना उनको डिफाइन किया गया होगा एज ए स्ट्रेटजी लेवल कह दो, डिजाइन स्ट्रेटजी कह दो, या ओवरऑल इंजीनियरिंग लेवल पे जो डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कि वो पूरी I की would पूरी say जब that तक स्ट्रेटेजी से भी ऊपर उठ गया है तो कल्चर पे आ गया, संस्कृति कल्चर, आपकी हाँ हाँ, जो। स्ट्रेटजी और कल्चर ये दोनों मिल करके सबसे मतलब ये एक बिल्कुल वो लेवल है जहाँ पर आपको कल्चर में हो सकता है उनकी जो इन जनरल मीटिंग्स इंटरनल चल रही होगी उसमें भी वो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखते होंगे कि वो हमेशा उसको प्राइम में रखें कि ये प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन आप सेंट्रिक है। स्टारबक्स स्टारबक्स देखिए, आप स्टारबक्स का कल्चर, जैसे ही आप स्टारबक्स के किसी आउटलेट में घुसते हैं, वहीं वो आपका नाम कप पे लिखते हैं, आपका नाम बुलाते हैं। वो हाँ, एक फ्रेंडलीनेस जो उन्होंने मैंने वो टर्म फॉर्म वही यूज किया था। कर दी। बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आपको तब आती है जब नॉर्मली आप अपना नाम सुनते हो, अरे कि भाई कोई हम्म, मुझे नाम सुन रहा है, ये कोई अदरवाइज और मे बी। नहीं, हाँ, नो वन एल्स डज दैट। yes, so this type of innovative things, this is what I say, that maybe gradually things can be added as per understanding the customer data, or as per the understanding of customer. It can be your starting point, it can be somewhere introduced in the midway of your journey, or it can be sometime not required kind of thing। हो सकता है आप इतना ही ज्यादा कंज्यूमेबल आइटम बेच रहे हो कि फर्क ही नहीं पड़ता है मे बी कि क्या है आप, तो आपका पैकेजिंग से लेकर के ओवरऑल प्रोडक्ट चल रहा है, नॉट रिक्वायर्ड इतना आपको डिजाइन सेंट्रिक कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं तो नहीं। आप हो सकता है केवल इमोशनल लैंग्वेज में, इमोशनल क्वेश्चन में ही आप ऐसा कुछ कर लें कि आपका काम चल जाए। तो टूथपेस्ट की लड़ाई आप देख ही रहे होंगे उनमें, दे ऑलवेज समथिंग व्हिच मे बी समथिंग व्हिच मोर, आई डोंट सी उससे तो कुछ इमोशनल कनेक्ट भी नहीं, बस जस्ट बिकॉज दे जस्ट वांट टू प्रूव डेटा डेटा वाइज कुछ कोई एक्स्ट्रा शाइनिंग हो गया है, कुछ हो गया है। सो दैट्स अ मोर ऑफ नो EQ, नो
design question based. It's a more of a regular products. And ऐसा नहीं है कि जब हम महंगी चीज़ों में जाते हैं तभी डिज़ाइन इन्वॉल्व होती है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। एलिमेंट्री या बहुत बेसिक प्राइस लेवल पे भी कई सारे ब्रांड्स हैं वो डिज़ाइन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। आपने एक बेवरेज का ब्रांड जो देखा होगा उसने छोटे हमारी छोटे बचपन की मेमोरीज को इवोक हाँ, करके और एक ब्रांड बनाया कि अ, आपको पेपर बोट करके एक ध्यान होगा Yes. बहुत ही 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए का प्रोडक्ट है, लेकिन आप देखिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट में Packaging. डिजाइन को कितना इम्पोर्टेंस दिया। आप आपको उस एक एक पैकेजिंग के ऊपर इतना कुछ पढ़ने को कनेक्ट करने को मिल जाता है, कुछ बचपन की कोई याद आ जाएगी, वो आपको स्टोरी बता देंगे, कुछ आपको कभी क्या मैंगो के ऊपर कुछ और स्टोरी। सो दे आर हाईली टुवर्ड्स द डिजाइन बेस, उनकी स्ट्रेटजी में है ये। उनकी ओवरऑल टीम ऊपर से लेकर के नीचे तक सब लोग सोच के प्रोडक्ट बना रहे होंगे कि हमें इस प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन करना है। सो जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा डिजाइन आपको महंगे प्रोडक्ट में मिले। ये एक तरह से कल्चर है, एक तरह से थॉट है, एक तरह का डेवलपमेंट का प्रोसेस है कि आप कहाँ अपने प्रोडक्ट को किस तरह से कंज्यूमर को प्रेजेंट करते हैं और उसका किस तरह से उसको उसको अट्रैक्ट करके अपने से जुड़ा रख करके लॉयल रख करके रिपीट वैल्यू रख के, यही किसी भी ब्रांड प्रोडक्ट वो चाहिए होता है, जिसके कई सारे टूल हैं। ये भी एक तरह से उसमें एक टूल है और यही एक एक डिफरेंट तरह का फ्रेमवर्क है। नो डिजाइन, लो डिजाइन या एवरेज डिजाइन, डिजाइन एज अ पार्ट ऑफ योर पैकेजिंग एंड देन very high to design जहाँ पर starting point is a design and then you come to the rest of the processes. So that is a framework uh, I was discussing in the previous talk also here also. You have studied design so deeply, and so how have you applied? Now you are also global chief, uh, global Yeah, I'm chief, design chief at Livspace, yeah, right? head of design को ही थोड़ा सा अच्छे से कहने का तरीका है ये। अब you are too humble. But नहीं नहीं आपने DQ को, डिजाइन कोशेंट को लिव स्पेस में कैसे अप्लाई? हाँ, मैं देखो ये एक अकेले पर्सन का काम नहीं होता है, ये पूरी एक लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो लोग। और क्योंकि मैं इस कंपनी की शुरुआत में ही इस कंपनी का पार्ट रहा हूँ तो मतलब मुझे भी ये फील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस कंपनी को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ये हम सब लोगों की एक तरह से मिल के जिम्मेदारी। तो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ओवरऑल ब्रांड की जर्नी में अपना कोई कोई रोल या अपना कोई इन्वॉल्वमेंट या कुछ दे। क्योंकि मेरी डिज़ाइन की तरफ लाइकिंग है और क्योंकि मेरी प्रैक्टिस भी पिछली ऐसी रही है, तो मुझे इस तरह की ज़िम्मेदारी मिली है कि जो कंपनी में डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ अगर डेवलपमेंट होता है तो दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट्स व्हाई wherever uh, this kind of discussion happens, I maybe represent the company, but I am not the person only. I don't say that I am the person who do all these things. I represent the person, but then there's a whole team, पूरी कंपनी है। और इस तरह के काम करने के लिए एक पर्सन से कुछ नहीं होता है। मार्केटिंग अगर अपनी इस बात मेरी किसी सोच को मार्केटिंग कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो मेरी सोच फेल हो जाएगी। मार्केटिंग की कोई सोच है, उसे मैं अगर एज़ अ प्रोडक्ट नहीं कम्युनिकेट कर पाया, तो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो हमारा दोनों का कम्युनिकेशन अगर हमारी रिटेल डिस्प्ले नहीं वैसा डिस्प्ले कर पाई, जहाँ पर वो प्रोडक्ट और वो सोच दोनों लग रही हैं, तो फिर कंज्यूमर से कनेक्ट फेल हो जाएगा। और ये तीनों ही नहीं होंगी तो ऑब्वियसली फिर ओवरऑल सो इट्स तो एक तरह से ये एक बहुत ही स्टिच्ड एनवायरनमेंट है जिसमें सब तरह के लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जब आप इस तरह की कोई बात करते हैं कि किस तरह से अप्लाई किया है, तो सारी कंपनी की पूरी ओवरऑल फिलोसफी जो है वो जब एक डायरेक्शन में चल रही होती है तभी ये संभव होता है, बाकी नहीं हो पाता है। तो ये किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये कंपनी की पूरी सोच है। सब लोग अपने अपने ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करने में अपना अपना रोल देते हैं। मैं एक डिज़ाइन की साइड को रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं डिज़ाइन के बारे में बात कर पाता हूँ, तो लगता है कि आई रिप्रेजेंट, बट नॉर्मली इट्स ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी स्पेस। तो यू मीन टू से कि
डिजाइन एज अ कल्चर फ्लोज थ्रू लिव स्पेस, वहां पे Yeah, obviously, that culture of live obviously, space it is will very, tend towards design. it is. तो क्या क्या मतलब तरीके हैं, आप जैसे यहाँ पे डिजाइन मैनिफेस्ट होता है? प्रोडक्ट एक डिजाइनर प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वेल डिजाइन, बट उसके अलावा कंपनी में और क्या क्या तरीके से डिजाइन मैनिफेस्ट हो? आप जब आप कंपनी का ओवरऑल विजन या कंपनी का जब ओवरऑल आपको किस प्रोडक्ट सेगमेंट के लिए आपको काम करना है, जब आप ये देखते हैं, अपना कंपटीशन स्टडी करते हैं, जब आप अपनी पोजीशनिंग को पहले से डिफाइन करके रखते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है, तो एट द टाइम ऑफ इवन हायरिंग आप लोगों को राइट लोग लेना पड़ता है। आप लोगों को हायरिंग के समय ही देखना पड़ता है कि क्या जो हम प्रोडक्ट या जो हम आउटकम बनाना चाहते हैं उसके लिए राइट लोग हैं या नहीं। कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए रेडीमेड मिलेंगे, तो फिर क्या करना होगा? तो अगर आपको मिल गए तो अच्छी बात है, आपको उन्हें अपनी कंपनी का विज़न और डायरेक्शन बहुत अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। और नहीं भी मिले तो शायद आपको कुछ ऐसे लोगों को हायर करना पड़ेगा जिनकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है। मतलब वो आपकी बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और जल्दी ही अडॉप्ट कर लेंगे। तो फिर आपकी अच्छी हायरिंग के साथ-साथ आपकी कंपनी में अच्छी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। और फिर अ, आपका जो ओवरऑल गोल है कंपनी का या किसी भी अ, पर्सन का जिसे आप हायर करते हो उसका ओवरऑल ग्रोथ चार्ट जब आप देते हो उसको, तो वो इतना क्लियर होना चाहिए कि उसे पता हो कि भई मुझे क्या बनाना है और मैं क्या बनूँगा और कंपनी कैसे बनेगी। ये अगर चीज़ें हैं उसे आप बहुत क्लियरली बता सकते हैं, तो आई थिंक आसान हो जाता है। फिर तो अ आसान तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ, थोड़ा-सा इसको हम बोल सकते हैं कि ये डायरेक्शन में काम करते हैं हम लोग, ताकि जो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि आज कुछ बना दिया, कल कुछ बना दिया, परसों कुछ बना दिया। जबकि स्टार्टअप कल्चर में ये भी होता है कि हमको एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट भी एक डायरेक्शनली एक्सपेरिमेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप मतलब ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ कुछ भी प्रोडक्ट साइड में कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है। आपका प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट भी किसी एक पर्टिकुलर अचीवमेंट को लेकर के पहले से दिमाग में विज़न रखिएगा कि आई नीड टू रीच दिस। उसके लिए आप हो सकता है कि थोड़ा लेफ्ट राइट डायरेक्शन में आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। So you need a good people, team of good people. You need a very focused goal ki what you want to achieve in terms of the product, in terms of the overall uh, प्रोडक्ट फिलोसॉफी। आपको अपना कस्टमर बेस पता होना चाहिए, आपको उसकी बहुत अच्छी डीप स्टडी होनी चाहिए कि आपको कस्टमर एक्चुअली क्या चाहता है। आपको कंपटीशन को लेकर के आपकी अच्छी स्टडी होनी चाहिए कि आपका कंपटीशन क्या कर रहा है। आप कॉम्पीट ही करना चाहते हैं या एक स्टेज आगे रहना चाहते हैं? आप कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे या किसी का बना हुआ कॉपी करना चाहेंगे? इस मामले में लिवस्पेस हमेशा से ही आई थिंक बहुत ही पायनियर और इनोवेटिव रहा है। लोगों को हैबिट चेंजिंग प्रोडक्ट्स भी बनाने की डेयरिंग रखते हैं हम लोग, और एक स्टेप आगे बढ़ कर के हम कोई नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करने की भी डेयरिंग रखते हैं। नॉट जस्ट अ फॉलोअर एटीट्यूड। लीडरशिप एटीट्यूड जो होता है मार्केट में, वो आपकी अगर कंपनी में फ्लो करता है तो अ, ये सब चीज़ें बहुत पॉसिबल है। अदरवाइज यू विल व्हाट यू विल डू कि व्हाट इज नीडेड यू जस्ट मेक अ either a copy or just create it. But to create something very new, very innovative, you need overall culture in such a way कि आज आप किसी चीज़ का प्रोटोटाइप कर रहे हो या किसी चीज़ के ऊपर आप डिज़ाइन में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंस फर्स्ट। सो इट्स वेरी ईजी टू जो चल रहा है उसकी कॉपी बना दो या उसके जैसा बना दो, यू कैन गेन अ मार्केट शेयर। बट जब आप नया बनाएंगे तो ऑलवेज टू पॉसिबिलिटीज, ईदर इट विल बी फेल्ड और इट विल बी फास्ट। मतलब कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं करेगा। तो अगर अगर आपकी कंपनी में इस तरह का एनवायरनमेंट है कि दे गिव यू द अपॉर्चुनिटी और enable you to do some kind of challenges, challenging things or innovative things, तो धीरे धीरे ओवरऑल टीम में भी इस तरह का encouragement और इस तरह की फील आती है कि नहीं, हमें अपना ये थॉट रखना चाहिए या हमें भी अपना ये आइडिया शेयर करना चाहिए। नहीं तो कई सारी कंपनी में मैंने देखा है लोग अपने आइडियाज़ को अपने पास ही रहने देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वर्थ ही नहीं है इसको शेयर करना। ये किया ही नहीं जाएगा। तो किया तो वो जाएगा जो पहले से डिसाइडेड है या हमें तो वो फॉलो करना है। ऐसे में दे विल जस्ट
वो एक तरह से मतलब 10 से 5 वाली नौकरी के जो लोग होते हैं वो उसी बिहेवियर में काम करते हैं। और कई जगह अगर आपको इस तरह का फ्रीडम है तो देन आपको कहीं से इस तरह का कोई स्टार अचानक से आपको निकल के आता है कि आपको लगता ही नहीं कि ये इतना अच्छा आइडिया देगा, बट समटाइम your team gets some very good ideas and then you implement. They fail, they succeed. That's like the way. But आपको वो करना का कल्चर बनाना पड़ता है, वो फॉर्चुनेटली वो लिव स्पेस में शुरू से रहा। तो इस डिजाइन कल्चर से लिव स्पेस ने क्या अपने किसी भी कस्टमर सेगमेंट को या स्टेक होल्डर सेगमेंट की हैबिट्स चेंज कर पाए हैं हम, जैसे एप्पल ने करा है, नहीं, मैं या देखिए अब बिहेवियर? इस तरह का एग्जैक्ट कंपैरिजन करना तो जस्टिस नहीं होगा, लेकिन हैबिट तो चेंज हमने बहुत बहुत की है। मतलब आप देखिएगा कि हम अगर हमारे मैन्युफैक्चरर पार्टनर्स की बात करें, उनको हमने हैबिट क्या चेंज की, हमने उनको नए ढंग से काम करना सिखाया है कि टेक्नोलॉजी का किस तरह से आप इन्वॉल्वमेंट करके किस तरह से आप अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्यूरेसी, परफेक्शन बढ़ा सकते हैं। ये तो आप तो जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री से, आप तो मैन्युफैक्चरर्स लोगों से बात कर सकते हैं। एवरीबडी इज दे आर एडवोकेटिंग कि उन्होंने लिव स्पेस से हमेशा ही कुछ सीखा भी है, प्रोडक्ट बना के ही नहीं दिया है। बाकी तो क्या है, सप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन वो हमेशा ही आपको एक स्टेप में आगे बोलेंगे कि नहीं, हमने लिव स्पेस से अच्छे प्रोसेस सीखे, हमने लिव स्पेस से टेक्नोलॉजी को किस तरह से प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं ये सीखा है, या किस तरह से स्मूथ और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करते हैं ये सीखा है। तो हैबिट चेंज ही हुई एक तरह से देखा जाए तो। उनको अच्छा करने की आदत डालना, स्पीडी करने की आदत डालना, टाइम पे डिलीवरी देना, क्वालिटी को लेकर के उनकी जो एक अवेयरनेस है वो बढ़ाते जाना टाइम के साथ। ये दिस आई थिंक इट्स अ वेरी गुड हैबिट चेंज। सेम गोज टू कस्टमर को कि मॉड्यूलर फर्नीचर को लेकर के आज जो इंडिया में अवेयरनेस हम डेवलप कर पाए हैं, तो हमारा तो बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहा है मॉड्यूलर फर्नीचर। तो हमने कस्टमर को बहुत अच्छे से मॉड्यूलर फर्नीचर का, क्योंकि कारपेंटर की प्रेजेंस में आपको मॉड्यूलर फर्नीचर को ये गलत हो जाता है मार्केट में कि कारपेंटर सम टाइम समवेयर जो है वो मॉड्यूलर फर्नीचर को डिफेम करने लग जाता है, जस्ट बिकॉज उसके पास, और उसकी गलती नहीं है, उसके पास कोई इस तरह के टूल नहीं है या उसके पास इस तरह के साधन नहीं है कि वो अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाए। तो वो यही तरीका है कि आप सामने वाले को खराब खराब बताओ, यही तरीका। तो मैं उसमें कारपेंटर की कोई गलती नहीं मानता, लेकिन हमने वो काम अच्छा किया कि कस्टमर को एजुकेट किया नए सेटअप से, उनको बताया कि भाई दिस इज अ गुड फर्नीचर एंड दिस इज हाउ यू कैन सी द क्वालिटी। हमने डिज़ाइन को लेकर के लोगों के बीच में अवेयरनेस डेवलप की है। हमारे प्रोडक्ट के डिज़ाइंस को लेकर के हमें बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं कि कुछ भी कहो, मॉड्यूलर फर्नीचर तो बहुत सप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बना हुआ कहीं होता है तो दिख करके पहचान में आ जाता है कि इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मेड फ्रॉम लिव स्पेस। अगर आपको मार्केट में होम इंटीरियर को लेकर के इस तरह के प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको नेशनली इंटरनेशनली नॉलेज है, तो मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट आईक्यू या अच्छे आईक्यू में तो आइकिया का नाम तो आप सबको पता होगा। आइकिया इज अ गुड ब्रांड। इंडिया में मैं बोलूँगा लिव स्पेस इज ऑल्सो ब्रांड लाइक आइकिया, जिसकी को लेकर के लोगों की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग या एक तरह से नाम लेंगे तो आप पहचान जाओगे आप किसके बारे में बात कर रहे हो। सो वो बन चुका है। तो अ, ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर को किस तरह से कनेक्ट करके रखते हैं। अगर आपने कुछ इंटरनेशनली ब्रांड देखे होंगे, एंथ्रोपोलॉजीज करके कोई ऐसे ब्रांड हैं, तो वो लोग बहुत ही ऐसे डिज़ाइन को ऐसे बनाते हैं कि भाई हमने नेचर से इंस्पायर होकर ये बनाया, स्टोन से इंस्पायर होकर के ये बनाया, मे बी सी से इंस्पायर होकर के बनाया। तो वो थोड़े से ब्रांड हैं वो जो इमोशनल फैक्टर को लेकर के मार्केटिंग करते हैं। और अगर आपने जॉनथन एल्डर हो गया या आपने स्टील केस हो गया या इस तरह के जो ब्रांड हैं उनके बारे में अगर आप जानते हैं तो देखेंगे वो अपने आप को थोड़ा सा एकदम अलग कैटेगरी में रखते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट ये हमने डिज़ाइन किया है और अगर आपकी लाइकिंग है तो दिस इज़ द प्रोडक्ट फॉर यू। सो दैट गोज़ टू अ कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट।
जिसको देख करके आपको ब्रांड के बारे में पहचान जाए। मतलब आप अगर कहीं स्टील केस का कोई बॉक्स पड़ा होगा फर्नीचर, तो आपको पता चल जाएगा कि इस ब्रांड का है, हम्म, क्योंकि उन लोगों ने हेवीली अपनी डिजाइन लैंग्वेज में इन्वेस्ट किया है। अ, हमारी कंपनी की तरफ से भी ऐसे कई इनिशिएटिव हैं, विंसेगो हो गया, या जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं, जो डिज़ाइन को लेकर के बहुत ही फोकस ब्रांड है, कैसेंड्रो है। तो वो एक लैंग्वेज ही ऐसी है जिस लैंग्वेज से कस्टमर को ये पता चल जाएगा कि दिस इज द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू दिस सेट, yes, right. या एक अलग तरह की डिजाइन लैंग्वेज को। तो अ, ये सारा जो कन्वर्सेशन है, ये हम इसको अगर हम समराइज करें, तो हम ये समराइज करना चाहते हैं, कर सकते हैं इस तरह से कि किसी भी प्रोडक्ट की जो ओवरऑल डेवलपमेंट की जर्नी होती है, वो उसके कस्टमर को ज़्यादा अच्छे से पहचानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये, उससे आप उस कस्टमर की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से आप उस प्रोडक्ट को इंटेलिजेंट बनाते हैं टाइम के साथ। उसके प्रोडक्ट के अंदर आप आपकी कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसके अंदर आप इमोशनल कनेक्ट डाल सकते हैं, सो दैट इट रिमेन कलेक्ट, आपके कस्टमर की रिकॉल वैल्यू रहे, आपके कस्टमर फिर से लौट के आए आपके कस्टमर को। और फिर अगर आप एक और सेगमेंट या अ, मतलब जिसको बोलते हैं लॉयल्टी, या जिसको उससे उसकी तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको फिर आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन लैंग्वेज ही ऐसा करना होगा कि वो कहीं भी रखा हो तो पहचाना जा सके। ये सारा कुछ जो है, ये एक पैरेलल वर्ल्ड है, ये ग्रेडिएशन नहीं है, लो टू डाउन और डाउन टू लो नहीं है, ये सारा एक पैरेलली कहीं भी डेवलप किया जा सकता है। तो यही कंक्लूजन है मेरी तरफ से कि अ, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन के बारे में इन जनरल बहुत चर्चा होती है, लेकिन डिज़ाइन क्वेश्चन के बारे में थोड़ी कम होती है। सो आई थॉट इट कैन बी अ गुड वे टू कम्युनिकेट वाइल यू। थैंक यू दीपक जी, you make this happen and give this opportunity to talk about this.